Once again, a very good morning to all of you. This is Abhilasha Nada, your political science teacher. So, class, today we all are going to continue our chapter 1 of your book, Political Theory. In our last class, we discussed about what is politics. We look after the different opinions and viewpoints and different meanings of the politics. Okay, so today we will discuss about what do we study in political theory, like what we are going to study in this whole book. ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, we will talk about it. So if we look around ourselves, and if we look our surroundings, what we are seeing like developments in many ways. ठीक है, development in many scenarios. Like if you are talking about the development, personal development, social development, economic development, we see development everywhere. We see changes. आज से जो 10 साल पहले, 15 साल पहले या 50 साल पहले या 1000 साल पहले जो चीजें थी, वो आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है. ठीक है, एग्जिस्ट कर भी रही है तो काफी डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, काफी चेंजेस हो चुके हैं उसमें. सो वी आर लुकिंग अराउंड, इफ वी लुकिंग अराउंड ourselves, if we looking to our surroundings, we see changes, right? But अगर आप डीपली देखो, ठीक है, अगर डीपली देखते हैं तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये कुछ वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के साथ में आते हैं. ठीक है, ये ऐसा नहीं हुआ कि आज रात को सोए और कल उठे और एकदम से चेंजेस हो गए. नो. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट दिस प्रेजेंट सिनेरियो ऑल्सो, जो ये कोरोना वायरस की सिचुएशन है, ये भी एक दिन में नहीं आई है. ठीक है, मे बी लाइक अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द एनालिस्ट, लाइक ऐसा कहा जाता है कि सम कंट्रीज दे आर जो क्या कर रही थी, इस पे काफी टाइम से रिसर्च कर रही थी, ट्राइंग टू मेक अ बायोलॉजिकल वेपन. ऐसे बहुत सारी चीजें कुछ एनालिस्ट ऐसा बोल रहे हैं कि कोई कंट्री ऐसा कर रही है. बट तो हम बोल सकते हैं ना कि दिस डिजीज, दिस पैंडेमिक, और ये जो है, ये भी एक दिन में नहीं आया है, इसको भी स्प्रेड होते हुए टाइम लगा है. ठीक है, समवन वाज रिसर्चिंग ऑन इट, इवन समवन इज रिसर्चिंग ऑन इट. ठीक है, तो ये जस्ट लाइक दैट जो हमारी सोसाइटी में चेंजेस आए हैं, टॉक अबाउट पॉजिटिविटी. ओके, जो हमारी सोसाइटी में चेंजेस आए हैं वो रातों रात नहीं हुआ है. ठीक है, बहुत सारे वैल्यूज है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो हम डिफरेंट डिफरेंट पीपल से क्या है इंस्पायर होके, उनकी पॉलिसीज से इंस्पायर होके अपने आइडल्स में, अपने यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर लेकर आए. Ideals like democracy, freedom, equality, for instance. Okay, these are uh, these are like ideals from the French Revolution. French Revolution और वहां से हम इंस्पायर होके क्या है, ये डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी लेकर आए हैं. बट फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी ये जो थे कुछ पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे जिन्होंने काफी टाइम तक इस पे रिसर्च की और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट्स लेकर आए थे. सो different countries, different nations may try to protect such values by enshrining them in their constitutions, as in the case with the American and the Indian Constitution. We enshrine these values like democracy, freedom, equality, liberty, republic, etc. All these things, all these ideals we enshrined in our constitution, right? Why we enshrined all these ideals in our constitution? Because as you know, constitution is superior to supreme law, and if we enshrine all these values in our constitution, then it then what we are doing, we are giving protection to these idols. हम importance दे रहे हैं in idols को. Okay, so these documents did not just emerge overnight. They are built upon the ideas and policies debated almost since the time of Kautilya. चाणक्य का नाम सुना है ना? कौटिल्य उनका अदर नेम है कौटिल्य. ठीक है, चाणक्य. Talk about Aristotle. Aristotle is known as the father of the political science. Okay,
क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा जाता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस. सो एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस. सो व्हाट इज योर होमवर्क फॉर टुडे? यू हैव टू फाइंड आउट द name of the philosopher who is considered as the father of the Indian political science. Okay, you have to find out the name of the philosopher who is known as the father of the Indian political science. Okay, normally father of the Indian constitution कौन है? Aristotle है. So these are like some of the important philosophers. कौटिल्य, एरिस्टोटल, जीन जेकस रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ठीक है, दीज आर सम ऑफ द फिलोसफर्स जिनके आइडियाज और प्रिंसिपल्स बहुत टाइम से इन्होंने क्या किया है, अपने आइडियाज को, अपने पॉलिसीज को, अपने प्रिंसिपल्स को डिबेट किया है. आफ्टर दैट ये जो कुछ पॉलिसीज आज के टाइम पे हम जो आइडल्स को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें काफी टाइम डिबेट हुआ है, उसके बाद आज हम फॉलो कर रहे हैं. देखो कौटिल्य आज से लाइक अप्रोक्सीमेटली आप समझ लीजिए लाइक 600 700 800 साल हो गए, इवन ज्यादा ही हो गए हैं कौटिल्य को रहे हुए को. बहुत टाइम हो गया. 700 800 तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ, बहुत मोर देन 1000 years हो चुके हैं. तो उनके कौटिल्य के आइडल्स को हम आज की डेट में भी क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं. एरिस्टोटल, जीन जेकस रूसो, कार्ल मार्क्स एक्सेट्रा, एवरीवन, महात्मा गांधी. ये रिसेंट की बात भी कर लो, ठीक है, आज से 70 years पहले की तो बात कर रहे हैं. महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी पॉलिसीज को भी हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं. अगर हम 5th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो बहुत फेमस फिलोसफर है प्लेटो एंड एरिस्टोटल. प्लेटो जो थे एरिस्टोटल के स्टूडेंट रहे हैं. तो डिस्कस्ड विद देयर स्टूडेंट्स वेदर मोनार्की और डेमोक्रेसी वाज बेटर. मोनार्की, किंग्स रूल, डेमोक्रेसी, पीपल्स रूल, विच वन इज बेटर. अपने स्टूडेंट से वो बिलीव डिस्कस कर रहे थे. इनके स्टूडेंट्स कौन है? अदर्स फिलोसफर जैसे सोक्रेट्स वगैरह हो गए, वो इनके स्टूडेंट्स रह चुके हैं. तो वो डिस्कस करते हैं विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर, मोनार्की फॉर्म और डेमोक्रेसी फॉर्म. ठीक है. इन मॉडर्न टाइम्स रूसो फर्स्ट आर्ग्यूड फॉर फ्रीडम एज फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन काइंड. जीन जेकस रूसो, he argued for freedom, like हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए, दिस इज आवर ह्यूमन काइंड. ठीक है, ह्यूमन राइट्स और के बारे में भी हम फर्दर जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे, हम इन टर्म्स के बारे में जानते रहेंगे. तो रूसो ने क्या किया था, ये जो स्टेटमेंट है बेटा हाईलाइट कर लेना अपने बुक में, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में नॉर्मली पूछ लिया जाता है. सो रूसो फर्स्ट आर्ग्यूड फॉर फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन काइंड, कि जो फ्रीडम है ये हमारा फंडामेंटल राइट है. ठीक है, ये ह्यूमन राइट है हमारा. ठीक है, जन्म सिद्ध अधिकार जिसे बोलते हैं, वो है हमारा ये राइट. फाल्गुनी, आई विल टेक यू आउट लेटर ऑन. कार्ल मार्क्स argued that equality was as crucial as freedom. ठीक है, जितना फ्रीडम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही इक्वालिटी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, फ्रीडम तो है, बट अब फ्रीडम किसको मिल रही है? मेन को ही मिल रही है या वुमेन को मिल रही है? नहीं मिल रही, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस क्या है, वो सारी चीजें एक्सपीरियंस किए कि इनइक्वालिटी वाली सिचुएशंस को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है. कि पहले मेन को तो फ्रीडम था, राइट टू वोट था, बट वुमेन को नहीं था. या फिर रिच पर्सन को तो था, पुअर पर्सन को नहीं था. तो कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड, कार्ल मार्क्स इन्होंने ही क्या है, ये क्लासलेस सोसाइटी की जो ये कम्युनिज्म और सोशियोलॉजी की आइडियोलॉजीज दी है, इन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि इक्वालिटी भी फ्रीडम के जितना ही इम्पोर्टेंट है. एंड इफ यू टॉक अबाउट महात्मा गांधी, ही डिस्कस द मीनिंग ऑफ फ्रीडम और स्वराज इन हिज बुक हिंद स्वराज. 1909 में उन्होंने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज. ठीक है, उसमें उन्होंने क्या मेंशन किया था, उन्होंने फ्रीडम का मीनिंग और स्वराज का मीनिंग उनके लिए क्या है वो चीजें डिस्कस की हिंद स्वराज में. भीमराव अंबेडकर, उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए और यू कैन से दलित के लिए क्या है कि आर्ग्यूड दैट शेड्यूल कास्ट मस्ट बी कंसिडर्ड अ माइनॉरिटी, कि शेड्यूल कास्ट को माइनॉरिटी सेक्शन में मानना चाहिए. ठीक है,
एंड एज सच मस्ट रिसीव स्पेशल प्रोटेक्शन, उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, बिकॉज उन्हें क्या है, इक्वालिटी के साथ ट्रीट नहीं किया जाता था, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, ना एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, ना ही जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, तो उन्होंने इक्वालिटी के लिए शेड्यूल स्पेशल एक कम्युनिटी की स्टडीज के लिए, उनकी जॉब के लिए क्या है, एक प्रोटेक्शन मांगी, उन्होंने आर्ग्यू किया कि इनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन होनी चाहिए. So these ideas find their place in the Indian Constitution. We find all those ideas. Scheduled caste के लिए reservations है, equality है, freedom है, democracy है. ये सारे के सारे जितने भी हमने अभी पढ़े, ठीक है, कुछ थिंकर्स ने इनके बारे में आर्ग्यू किया, और ये सारे के सारे आइडियाज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है. अब preamble enshrines freedom and equality. The chapter on rights in the freedom, rights in the Indian Constitution abolishes untouchability in any form. In any form, ठीक है, कि चाहे आप किसी भी जेंडर के बेसिस पे हो, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, अनटचेबिलिटी को राइट टू इक्वालिटी में मेंशन है. अंडर राइट टू इक्वालिटी इट इज मेंशन राइट अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड. किसी भी फॉर्म में हो, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है. इवन गांधीयन प्रिंसिपल्स, उनको एक यू कैन से राइट या फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गांधी जी के प्रिंसिपल्स को, बट यस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो आपके गाइडेड वैल्यूज है, वी विल टॉक अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज इन योर फर्स्ट बुक, ठीक है, सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसके बारे में. सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में उन्होंने अपनी बुक में जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स हैं उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या है, मेंशन किया गया है. सो बेसिकली political theory deals with the ideas and principles that shape constitutions: freedom, equality, justice, rights, social justice, liberty, everything. We will talk about political theories dealing with all these ideals or all these principles. Okay, जो different different countries के constitution को क्या करती है, एक shape देती है, ठीक है. अब shape देना मतलब always shape देना concrete form में नहीं, analytical form में सोचना, ठीक है, कि कैसे shape constitution को एक strong constitution बनाती है. गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ इन अ सिस्टमेटिक मैनर, की गवर्नमेंट कैसे चलेगी, हमारी सोशल लाइफ एक सिस्टमेटिक मैनर में कैसे चलेगी. फॉर एग्जाम्पल, अभी सोचो कि आपके पास इक्वालिटी नहीं है, राइट टू इक्वालिटी नहीं है, तो क्या चीजें हो सकती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट. सो इट क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड सो ऑन. फ्रीडम यू ऑल नो, ठीक है, we can move freely, we have the freedom to profess any occupation, we have freedom to choose our education line, etc. Like freedom. Okay, equality, you all know everyone is equal before law. right to vote है, ठीक है, education equality है, professional equality है, all these things. justice, अगर हमारा राइट वायलेट होता है तो वी हैव दिस राइट ऑफ जस्टिस, कि हमें न्याय मिलना चाहिए. डेमोक्रेसी, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक पीपल्स गवर्नमेंट. सेक्युलरिज्म, गवर्नमेंट विल नॉट प्ले एनी रोल इन प्रमोटिंग एनी वन रिलीजन, ठीक है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल from the viewpoint of government, and so on. We will talk about these things, these concepts in this chapter. So it probes the significance of the principles such as rule of law. What is the importance of rule of law? Rule of law. What is rule of law? Everyone is equal before the law. Law for either it is the president of India or a normal citizen of India. Laws for everybody is equal. चाहे वो men हो, women हो, higher class हो, lower class हो, कोई हाई पोजीशन गवर्नमेंट ऑफिसर हो या कोई एक पियोन भी हो, लॉस फॉर एवरीबडी इज सिमिलर, ठीक है, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है. सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है, ये इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही क्या है, ये इन चीजों को डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को बनाया है, जुडिशरी को बनाया है. हम
बोल सकते हैं, या फिर फेडरलिज्म को बनाया है. सो वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स. एंड ये सारी चीजें हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स के एग्जामिनेशन के, उनके डिबेट्स के, उनके आर्गुमेंट्स के बाद हमारे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन की गई है. तो रूसो और मार्क्स और गांधी डिड नॉट बिकम पॉलिटिशियंस. कभी भी पॉलिटिशियन नहीं बने. गांधी जी भी कभी आप कह सकते हो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो गांधी जी उसके मेंबर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, बट उनके वैल्यूज ने, उनके आइडियल्स ने काफी इंस्पायर किया है. ठीक है. देयर आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड generations of politicians everywhere. There are also contemporary thinkers. Contemporary, what do you mean by contemporary? It means present era. Okay, contemporary का मतलब होता है present era. So there are also contemporary thinkers who draw upon them to defend freedom or democracy in our own time. Besides examine arguments, political theorists also reflect upon our current political experience and point out trends and possibilities for the future. So, हमारे जो present era के thinkers भी हैं, वो भी क्या करते हैं, who draw upon them to defend freedom or democracy in our own time. कि उनके टाइम पे डेमोक्रेसी और फ्रीडम का जो मीनिंग था वो आज के टाइम पे भी क्या लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इवन वो हर एक आर्ग्यूमेंट को एग्जामिन करते हैं, चाहे वो कार्ल मार्क्स का आर्ग्यूमेंट हो, चाहे वो रूसो का हो, चाहे वो एरिस्टोटल का हो. वो प्रेजेंट थिंकर्स भी क्या करते हैं, उसे आर्ग्यू करते हैं, एग्जामिन करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं अपने पॉलिटिकल एक्सपीरियंस में. और वो भी क्या करते हैं, ऐसी चीजें निकालते हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज होंगी इन कॉन्सेप्ट्स की. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स लाइक ये जो आइडियाज और प्रिंसिपल्स हैं जो हमें डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स ने दिए हैं, उनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले. Okay, so this is all about today class. Go through the topic, and if you face any problem, you may ask me. Thank you so much for joining the class, everybody. Yes, Falguni, what? Unmute your device.